Hey, hello, good evening. Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. And this is Laboni Ghatak, currently speaking from Raurkela, Orissa. And I'm working in a Eklavya Model Residential School as a PGT Geography. So today's video is going to be a little bit different because today we have someone very special with us actually. Today we have Manasi Hozai ma'am. She is a PET female of Yamaris Khumlung in Tripura. So like many of you have already requested me to make these separate videos on separate posts like PET, librarian, music, JSA and accountant. So I thought ki I should start. So and when I have Manasi ma'am with me, so why shouldn't I upload a separate video on the post of PET? So today in this video we will be covering some of the very basic things like how you can take preparations for the upcoming exams of in GMRS of PETs, and at the same time if you are like selected for the post of PET, then what are the basic responsibilities you need to perform. These are the things we will try to cover. So without wasting much time, I'm just turning the camera towards ma'am, so the rest of the things ma'am can share with all of us. Okay. Hi ma'am. Hello viewers, my name is Manisha Hujai and I am from a small town, a hill station of Assam Haflong, and currently I am posted in Tripura under Nest in the Eklavya Model Residential School in Khumlung. Currently I am working as a physical education teacher and currently in Odisha right now, in Odisha for the national EMRS National Sports Meet 2025. Ma'am, any questions? Yes ma'am, like our viewers wants to know like how someone who is from like physical education background, then what are the preparation they can take. Okay, I have completed my 4 years bachelor of physical education. Okay, और उसके बाद मैं currently I was in my previous job and उसके बाद I have given the exam. That exam too is being taken by the NEST, National Education Society for Tribal Students. And after clearing the exam, I was being appointed here. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो मैम अगर मतलब कोई पीईटी टीचर मतलब पीईटी बनता है तो उसके बाद अगर वो नेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अगर आप बता सकते हैं तो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स. उसके बाद आपका क्लासेस होते हैं लाइक बहुत लाइक जो हमारे फील्ड में उनको पता होगा कि ऐसा पीईटी सिर्फ खेल नहीं होता है, उसके अलावा लाइक रियल लाइफ रियल लाइफ सिनारियो, उसके अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है. मैंने अपने 4 साल में मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट्स लाइक आई हैव गॉन थ्रू, बट आपको स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता है. स्पेशली देयर इज अ बोर्ड एग्जाम इन क्लास 12. आपको 11-12 दोनों पढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए यू हैव टू कंप्लीट योर 4 years बैचलर डिग्री कोर्स. अब तो इस साल की नोटिफिकेशन में ऐसा हो गया है कि यू हैव टू कंप्लीट द इंटीग्रेटेड 4 years कोर्स, तभी आप यू आर एलिजिबल, वरना आप एलिजिबल नहीं हो. अच्छा मैम, अगर आप सुबह से लेके आपका नाइट तक का जो स्केड्यूल है आपका एज अ पीईटी, तो वो अगर मतलब कंटिन्यूअसली बोले कि हाँ ऐसा ऐसा करके आप मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, नाइट तक का. अगर ये बोलने जाओ तो लोग नहीं आएंगे फिर पढ़ने के लिए. इट्स वेरी हेक्टिक. एज अ स्टूडेंट जो रूटीन था, मैं जो अपने बचपन में मैं आई वाज अ हॉस्टलाइट, सो तब से लेके आज तक मेरा लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है. व्हेन इट कम्स टू रूटीन, you have to go for PT in the morning and then उसके बाद you have to attend the assembly के बाद you have your classes. then again दोपहर को कभी कभार आपका remedial होंगे and शाम को गेम्स एंड स्पोर्ट्स as usual. वो क्या हर दिन होता है मतलब गेम्स आप लोगों का? गेम्स हमारा हर दिन चलता है. 1 day you get off. गेम्स हमेशा आपका हर दिन चलेगा. and after the games, जो शाम को गेम्स होते हैं लाइक समर को अलग, विंटर को अलग, एज पर द डे ड्यूरेशन वो 1 घंटा का टाइम होता है. एंड देन आफ्टर दैट शाम को फिर कभी कभार आपका सुपरविजन का ड्यूटी पड़ता है बस. अच्छा, तो मतलब पीईटी को भी क्या हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस का ड्यूटी मिलता है? मतलब इन केस ऑफ यू आपको क्या होगा? डिपेंड्स ऑन द स्कूल एंड द प्रिंसिपल देयर. इन केस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टफ, यस यू आर बाउंड टू, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको करना है.
हाँ ओके, तो आप हो हाउस मिस्ट्रेस भी, और मतलब आप हो क्या हाउस मिस्ट्रेस? Yes, I am also the mistress of the junior group. Okay. I am the house mistress of Ganga House Junior. ओके तो अगर हम लोग इन शॉर्ट में बताएं तो सुबह में आप लोगों का एक मॉर्निंग पीटी होता है, उसके बाद फिर असेंबली होता है, उसके बाद क्लासेस होता है, देन रिमीडियल कभी कभी, एंड देन फिर आप लोगों का क्या हो जाता है कि Supervision. हाँ इवनिंग पीटी, उसके बाद Yes, सुपरविजन। apart from that also और भी responsibilities है, जैसे कि आपको मैथ्स में आपको बच्चों का ध्यान रखना है कि बच्चे सब खाना खा रहे कि नहीं, वो सब वाइज आपका लाइक जैसे स्टूडेंट का अलग अलग ड्यूटी लगता है वैसे टीचर का भी अलग अलग ड्यूटी होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द करिकुलम ऑफ द स्कूल एंड लाइक स्कूल वाइज स्टेट वाइज वो सबका अलग अलग होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आपका स्कूल किस तरह से चल रहा है. कभी कभार रूटीन में थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, बट दिस इज द रूटीन ऑफ द एंटायर EMRS इन इंडिया. ओके तो एज अ पीटी आपको मतलब अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आपको कोई अलग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलता है क्या? अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनसीसी. यस हाउस मिस्ट्रेस का एक कभी लाइक इट ऑल डिपेंड्स. इफ द स्कूल हैव नो टीचर्स यू आर बाउंड टू, जैसे कि यस आई एम ऑल्सो द हाउस मिस्ट्रेस. और कभी कभी एनसीसी हो गया या स्काउट एंड गाइड हो गया. अच्छा तो आप स्काउट एंड गाइड्स में भी हो और एनसीसी में भी हो? एज ऑफ नाउ मैं नहीं हूँ, बट हो सकता है. अच्छा अच्छा, आपको मिल सकता है अगर आप मिल सकता पीटी है. हो तो ज्यादा Yes. प्रोबेबिलिटी है कि आपको हो सकता है, मिल सकता है. Yes. ओके और And also a part of NSS, you have to look after the students of the NSS. So NSS, NCC, Scout and Guide, ये responsibilities आपको दे सकते हैं if the school wants. ओके 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 मैम, अगर कोई किसी का वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पीईटी से मतलब हो गया फिजिकल एजुकेशन लेके, तो अगर वो नेक्स्ट में अप्लाई करना चाहता है तो अभी कर भी दिया है क्योंकि 28 अक्टूबर तक तो डेट था, तो अभी अगर कोई प्रिपरेशन ले रहा है तो पहले तो प्रीलिम्स है, उसके बाद जो हम लोगों का मेंस है, तो वो कैसे प्रिपरेशन ले, अपने आप को कैसे वो रेडी करे? पेपर इतना टफ नहीं रहता है बिकॉज जैसे मैं ये एग्जाम दी थी उसमें मेरे को प्रिपरेशन का समय नहीं मिला था, बट आई वॉज वेरी अप टू डेट. पेपर 1 आपका जो जनरल पेपर 1 होता है लाइक रीजनिंग हो गया, आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, एंड देन पेपर 2 होता है दैट इज प्योरली ऑन द सब्जेक्ट. जैसे कि हो गया बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हो गया आपका बैडमिंटन का जो सेंटर में कैसा आपका जमीन से लेकर नेट के बीच में कितने हाइट है. एग्जाम्पल जैसे कि स्कोर शीट दे दिया गया आपको, जैसे कि हाई जंप का स्कोर शीट, उस स्कोर शीट को आपको वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस. तो ये हमारा मेरे टाइम में जो एग्जाम था उसमें ये सब क्वेश्चंस आए थे. तो उसमें ऐसा भी था कि 10 मार्क का उस हाई जंप को लेके एक स्कोर शीट के ऊपर 10 मार्क आए थे. तो वो बेसिक क्वेश्चंस आता है. That's it. अच्छा, अगर मैम क्योंकि इस बार से डिस्क्रिप्शन पैटर्न ऐड हो चुका है तो इस बार से मतलब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में भी कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको लगता है कुछ हाँ कि ऐसा आ सकता है? वो तो आई एम नॉट समवन हु सेट द पेपर, वो आई डू नॉट नो किस तरह से सेट किया जाएगा, बट आई डू बिलीव इफ योर बेसिक्स आर क्लियर एनीवन कैन क्रैक इन दिस एग्जाम. ओके ओके मैम, तो एज अ पीईटी आप तो मतलब आपको ये हमारे में आने के बाद आपको क्या क्या लगा कि नहीं ये होता तो अच्छा होता, नहीं इस चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हो, इस चीज़ों से अभी भी आप मतलब लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाता तो अच्छा होता, मतलब आपका लाइफ चेंज कैसे हुआ, मतलब बताइए. लाइफ चेंज इन द सेंस कि लाइफस्टाइल में तो बहुत आपको फर्क मिलेगा, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन द रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर द टू वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स. सो आप यहाँ पे कुछ लेविश लाइफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड आई बिलीव सो. ये संस्था नया है, इसको ग्रोथ का बहुत जरूरत है. आई बिलीव कि यहाँ और लोग आए और जुड़े. So this was all about EMRS and आपको इस स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स मीट के बारे में मैम के थ्रू, इनकी वीडियो चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ आपको इनसाइट्स देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. एंड आई होप इन वीडियो से आपको और भी मतलब कि मोटिवेशन मिलेगा कि आप इस संस्था में आने के लिए आप लाइक यू प्रिपेयर योर बेस्ट. एंड आई होप
we can surely meet up in the near future. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much.